The enemy is after our thoughts. वो दुश्मन हमारे Because it विचारों doesn't के start पीछे with speaking, it starts with thinking. है। क्योंकि इसकी शुरुआत बोलने से नहीं सोचने से होती है And we are very casual about our thoughts. और हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम जो बातें सोचते I हैं say, oh, it's just the thoughts. पता है मेरे विचार ही तो हैं But thoughts are going to become words. लेकिन विचार ही आगे जाके शब्द बनते हैं And words create. और शब्द रचना करते हैं। I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूँ Thoughts विचार will become words and words will create. विचार वचन बन जाएंगे और वचन रचना कर देंगे। Because many of us don't know how the spiritual realm works. क्योंकि हम में से बहुत लोग नहीं जानते आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है। See, I told you there was a time where in Monica we were under heavy debts. मैंने आपको बताया एक ऐसा समय था जब मैं और मोनिका बहुत भारी कर्जे के अधीन थे। Constant calls from the bank. निरंतर बैंक से कॉल आते थे हमें। We used to feel so ashamed. हमें बहुत शर्म आती थी उसके कारण। But then God started to teach me about His Word. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। I didn't go to anybody to beg, hey, will you pay my debt? मैं किसी के पास भीख मांगते हुए नहीं गया, मेरा कर्जा पे कर दो प्लीज Please? प्लीज। No. नहीं, I went to my room. मैं अपने कमरे में गया, I shut my door. दरवाजा बंद किया I opened the Word. और मैंने वचन खोल लिया And I found out promises that my Father had given to me. और मैंने वो वायदे ढूंढ निकाले जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। The Bible says every promise of God is fulfilled with a amen and a resounding yes. बाइबल कहती है परमेश्वर का हर एक वायदा आमीन और एक गूंजती हुई हाँ के साथ पूरा होता है। So I went to my room, तो मैं अपने कमरे में गया, shut my door, दरवाजा बंद किया, lifted my hands, अपने हाथों को उठाया and I said, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. और मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता वो धन्य हो क्योंकि उसने मुझे हर एक आशीष से आशीषित कर दिया है आत्मिक स्तर में। Oh, Pastor, how many times you said it? हो क्योंकि उसने मुझे हर एक आशीष से आशीषित कर दिया है आत्मिक स्तर में। Oh, Pastor, how many times you said it? पास्टर आपने कितनी बार बोला होगा इस बात को? Thousands of times. हजारों बार बोला होगा शायद। Until I start believing I am blessed. जब तक मेरे दिल में मैं विश्वास करने नहीं लग गया कि मैं सच में आशीषित हो चुका हूँ। When we had nothing, जब हमारे पास कुछ नहीं था, but we had the Word. लेकिन वचन था हमारे पास। And I kept saying it. और मैं कहता रहा। Day in, day out. That time I used to go to church sometimes so that I will have undivided attention. And I would give my undivided attention to the Lord. I didn't beg one time, didn't tell God to change my situation, just spoke the word. Just spoke the word. What did I see? Nothing. But I kept on speaking the word. Day after day, hours after hours. Thank you, Father, I am blessed. Thank you, Father, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Lord Jesus, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Father, I am blessed. और उस समय मैं कलीसिया जाया करता था पर मैं अपना ऐसा ध्यान जो भटक नहीं ना पाए मैं परमेश्वर के सामने लेकर के आता, दरवाजा बंद करके उसके सामने मैं इस बात की घोषणा करते रहता, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ। The word that we are preaching, जो वचन हम आपको सिखा रहे हैं we are living it. हम उसको जी रहे हैं। It's not a good doctrine. ये कोई अच्छी शिक्षा नहीं है सिर्फ। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? My finances began to change. मेरी आर्थिक परिस्थितियां बदलने लगी। Not only I was free of debts, सिर्फ इतना नहीं कि मैं कर्जे से आजाद हो गया, we started clearing the debts of other believers. हम दूसरे विश्वासियों के कर्जे चुकाने लगे। Why? क्यों? Was it my ability? क्या वो मेरी क्षमता थी? नहीं। If it was my ability, I would have thought, what other work can I do? अगर मेरी खुद की क्षमता होती तो मैं सोचता कि मैं और क्या काम कर सकता Should हूं? I start a business? एक व्यवसाय शुरू कर देता हूँ। Let me find some new opportunity. एक नया मौका तलाशता हूँ कहीं If से। you're a businessman, do that. अगर आप व्यवसायक हो तो करो। But let me tell you, लेकिन मैं बता दूं, the Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich, Bible and He कहती है- adds no sorrow with it. बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आशीषें हैं जो एक व्यक्ति को धनवान बनाती हैं और परमेश्वर उसमें कोई दुविधा नहीं मिलाता, कोई दुख Amen. नहीं मिलाता।
Still today, you know what is our testimony? आज भी आपको पता है हमारी गवाही क्या है? That this church stands without $1 support from any man. That's why we call it Faith Arena, because it's Jesus Christ who has sponsored this church. आज तक हमारी गवाही ये है कि ये कलीसिया बिना भी किसी मनुष्य के $1 दिए बिना भी चलती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हमने विश्वास से चलने वाली अरीना रखा, क्योंकि परमेश्वर इसका स्पॉन्सर है. Amen? Some people don't believe it. कई लोग नहीं मानते ये बात. They are measuring it. उनको They say, विश्वास huh, huh. So we say, huh, huh. But those who believe, they receive. Amen? I said those who believe, they receive, and they walk in the same favor, in the same grace, in the same anointing. और कई लोग विश्वास नहीं करते इस बात का जब हम कहते हैं, लेकिन वो जिस नाप से नापते हैं उनको उसी नाप से वापस लौटाया जाएगा. लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको उसके मुताबिक, उसी अभिषेक के मुताबिक, उसी विश्वास के मुताबिक वापस लौटाया जाएगा. A church is not built by finances. A church is built by faith. And faith comes from the written word of God. एक कलीसिया पैसों से नहीं बनाई जाती, विश्वास से बनाई जाती है, और विश्वास परमेश्वर के लिखित वचन से आता है. So many preachers ask me, who is your sponsor? बहुत से प्रचारक मुझसे Sir, कहते हैं, the Lord Jesus Christ, who says silver is mine and gold is mine and all the riches of heaven and earth are mine, he is my sponsor. बहुत से प्रचारक आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है. कहता हूँ वो यीशु मसीह जो कहता है सोना मेरा और चांदी मेरी है, वो जो स्वर्ग का बनाने वाला है वो मेरा स्पॉन्सर है. Amen? And he can be your sponsor too. और वो आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है. When the Lord called me into full-time ministry, जब प्रभु ने मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाया, many men of God, many preachers told me, now brother, be ready that God will take you. विराट कोहली ने 12th तक पढ़ाई की. तो To बहुत the से valley where you will not have anything to eat. तो बहुत से प्रचारक मेरे पास आए और कहा कि अब भाई तैयार हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें उन तराइयों में से लेके जाएगा, उन खाइयों में से लेके जाएगा जहां पर तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे. But when I read in the word, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा, वचन में पढ़ा, the word of God says, परमेश्वर का वचन ये कह रहा था, because the Lord is my shepherd, I shall not want. तो बाइबल ये कह रही थी क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी. So I had a conversation with my father. तो मैंने अपने पिता से बात की. I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, when I was working for a man, मैंने कहा जब मैं एक इंसान की कंपनी में काम कर I रहा had a था, very good salary. मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी, Salary used to come on time. समय पर तनख्वाह मिलती थी. Man was my employer. मनुष्य मेरा बॉस था उस समय. But now लेकिन अब they are saying, ये लोग ऐसा कह रहे when हैं you will be my boss, कि जब आप मेरे बॉस बनोगे I'll not have things to eat. तो मेरे पास खाने के लिए नहीं होगा, I'll not have things for my kids. मेरे पास मेरे बच्चों की I'll जरूरतें not पूरी have करनी नहीं fees होगा, for their school. उनके स्कूल की फीस नहीं होगी मेरे पास. And I heard the Lord's voice clearly. He said, would you believe a man or would you believe me? और मैंने परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना. उसने कहा क्या तू एक मनुष्य की बात सुनेगा या तू मेरी बात पर भरोसा करेगा. And he said, my son, I am making a covenant with you. और उसने कहा मेरे बेटे मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ That as long as you live, you will lack nothing. कि जब तक तू जीवित रहेगा तू किसी भली वस्तु की कमी नहीं देखेगा. Amen? आमीन. Like centurion, I got a spoken word and I grabbed it, I believed it, I received it. I said, as long as I live, I will not lack, and that has settled it till now. और उस सूबेदार की तरह जब मुझे वो बोला गया वचन मिला, मैंने उसको थाम लिया और मैं अपने आप से कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी अच्छी बात की कमी को नहीं देखूंगा. Amen? But pastor, because of corona, the churches are shut. You will not lack. But pastor, the jobs, the business are shutting down. You shall not lack. But pastor, the Americans are taking their business back. You shall not lack. The Lord did not say that because of man you will not lack. He said, because I am your shepherd, you shall not lack
period. लेकिन लोग तर्क वितर्क करते हैं, बोलते हैं पास्टर लॉकडाउन में कलीसियाएं बंद हो गई लेकिन तुम्हें कमी नहीं होगी, पास्टर नौकरियां जा रही हैं, व्यवसाय बंद हो रहे हैं पर तुम्हें कभी कमी नहीं होगी, अमेरिकन लोग अपनी कंपनियां वापस लेके जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर कहता है जब तक मैं तुम्हारा चरवाहा हूं तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। The same God who वही can परमेश्वर- feed 60 lakh Israelites in a desert can feed you and your family in a pandemic, can feed you and your family no matter what crisis hits the earth. वही परमेश्वर जिसने 60 लाख इजरायलियों को मरुस्थल में चलाया, 40 साल तक उनका खाना पीना सब ध्यान रखा, वो आपका और आपके परिवार की देखभाल कर सकता है चाहे कोई भी महामारी, कोई भी तरह का लॉकडाउन क्यों ना हो। In fact, can I say this? यहां तक कि मैं ये कह सकता हूं, In the crisis, the power of God is manifested. समस्या के समय में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। I bought my house in a pandemic. मैंने अपना घर खरीदा जब मंदी थी, जब पैंडेमिक। I bought a new car in the pandemic. मैंने एक नई गाड़ी खरीदी थी पैंडेमिक में। So many people in our church bought houses and cars in the pandemic. हमारी कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने घर और गाड़ियां खरीदी पैंडेमिक के अंदर। Why? क्यों? Because crisis is the best setup for God's people to shine. The Bible says, when it will be dark in the world, my people will shine. क्योंकि जब समस्या का समय होता है तो वो सबसे बढ़िया मौका होता है परमेश्वर को साबित करके दिखाने का कि उसके लोग समस्या के समय में भी उन्नति करेंगे। Amen. Amen. When it was darkness in the camp of Egyptians, there was light in the camp of Israelites. जब मिस्रियों के खेमे में अंधकार था, इजरायलियों के खेमे में उजाला था। When there was weeping and gnashing of teeth as the camp of Egyptians, there was dancing and rejoicing in the camp of the children of God. जब मिस्रियों के खेमे में रोना और विलाप करना था, परमेश्वर के बच्चों के खेमे में आनंद मनाना और नाचना गाना था। But how, Pastor? Tell me how. So many people come to me, they say, tell me how. I say this, they say, tell me how. I say, you don't get it. It's this. They say, no. I get that. Don't give me a religious answer. Tell me. लेकिन बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है लेकिन होगा कैसे होगा, तो मैं बोलता हूँ ये वचन से होगा। बोलते नहीं वो तो ठीक है लेकिन होगा कैसे, मैं बोलता हूँ वचन से। बोलते नहीं धार्मिक आंसर नहीं चाहिए, ये बताओ कैसे होगा। How is not your job. कैसे होगा ढूंढना आपकी नौकरी नहीं है, Your job is to believe. आपकी नौकरी है विश्वास करना। Jesus said, only believe. यीशु ने कहा केवल विश्वास करो, If you believe, you will see the glory of God. क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। He didn't say how it will happen, उसने ये नहीं कहा मैं बताऊंगा कैसे होगा, and He will never tell you how. और वो कभी नहीं बताएगा कैसे Because करेगा। if He tells you how, you will run after methods. क्योंकि अगर उसने आपको बता दिया कैसे होगा तो आप उन नुस्खों के पीछे भागोगे। Amen. आमेन। Why don't we simply believe it? That's why Jesus said, man, if we can become like little kids and believe. हम आसानी से मान क्यों नहीं लेते, इसीलिए यीशु कहता है अगर हम छोटे बच्चों की तरह मान जाएं, विश्वास कर लें। Your Father आपका पिता is pleased when you walk in health. Is pleased